स्क्रीन देख सकते हैं और हमारे बीच राहुल जी पहुंच रहे हैं बहुत ही जल्द আপোনালোকে মঞ্চত আহি পোৱাৰ লগে লগে এটা উষ্ম আদৰণি দিব বুলি আশা কৰিছো। ইতিমধ্যে তেওঁ মঞ্চত আহিবলৈ সাজু হৈছে। We have Honorable Chhattisgarh CM Bhupesh Bagal ji, and I would like to may I ask our Manoj Dharma ji to felicitate Bhupesh Bagal ji. Now I would like to felicitate AICC General Secretary Jitendra Singh ji, and may I ask Prashant. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, अगर उन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलेंगे तो कैसे मतलब वो लोग आगे बढ़ेंगे। और उन लोगों के बिसाडारा के लिए यही बोल रहे हैं कि उन लोगों के बिसाडारा में ये बात है ही नहीं कि वो लोग इंडस्ट्री लाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। उनसे पूछिए बीजेपी के आने के बाद नफरत कम हुई है या बढ़ी है? बढ़ गया है, बढ़ गया। तो देखिए, आप इनको क्या लगता है कि नफरत और बेरोजगारी में कोई रिलेशनशिप है, रिश्ता है? नफरत और बेरोजगारी में कोई रिश्ता है? ঠিকে বাৰু মানে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যে নিবনুৱা ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হৈছে আৰু ঘৃণিত ভাৱ ইটো জাতি প্ৰথাৰ ক্ষেত্ৰত মানে সংঘাত সৃষ্টি হৈছে, ইমানে কথা। আৰু এটা হ'ল Sorry to interrupt. Now we'd like to give everyone a fair chance. So I will answer the question. There is a नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी नफरत बढ़ेगी, अगर नफरत कम होगी बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी नफरत कम होगी। আনএমপ্লয়মেন্টৰ মাজত তথা মানে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এটা সম্পৰ্ক আছে। যদি ঘৃণা বৃদ্ধি হয় তেতিয়া আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট বৃদ্ধি হয়, যদি ঘৃণা কমে তেতিয়া আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেটটো কমিব। कांग्रेस नफरत मिटाती है, बीजेपी नफरत फैलाती है। কংগ্ৰেছে ঘৃণা শেষ কৰে আৰু বিজেপিয়ে ঘৃণা বঢ়ায়, অৰ্থাৎ ধৰ্মকেন্দ্ৰিক যি সংঘাত এতিয়া বিজেপিৰ দিনত বাঢ়ে। मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो बिजनेस के लिए, प्रगति के लिए पहले शांति की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है। ये कांग्रेस लाती है। बीजेपी क्या करती है? नफरत फैलाती है और बेरोजगारी लाती है। अच्छा भैया, आप दूसरों से भी बात करनी पड़ेगी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपको राजनीति में आना चाहिए। नहीं, बता रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने ये जो अपना स्पिरिट है ये मेंटेन किया, राजनीति में बहुत आगे जाओगे। बस सच्चाई पकड़े रखना, सच्चाई को छोड़ना मत, कॉन्फिडेंस में काम करो और तेजी से आगे बढ़ोगे। ठीक है? सर मुझे भी हिंदी अच्छे से नहीं आता। हाँ, तो आप भी असमीज में बोलो। नमस्कार, मोर नाम श्रीमती सुकमती मोरा। मैं मानकटा सुकमती मोरा। मानकटा साब অফিচৰ পৰা আহিছো। মই মানে ভালকে ভৱিষ্যত পঢ়ি মেলি এগৰাকী ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ। বাট আমাৰ তাৰ মানে যিটো কণ্ডিশ্যন হৈছে, ঘৰুৱা আৰ্থিক অৱস্থা অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, আৰু যিটো আমাৰ মানে গাঁৱত হ'ব লাগে হস্পিটেলৰ ব্যৱস্থা, সেইবোৰ মানে একো ভাল হোৱা নাই। ডক্টৰ নাই, নাৰ্ছ নাই। যদি আমি ভালকে পঢ়ি মেলি নাৰ্ছৰ ট্ৰেইনিং কৰিব বিচাৰোঁ বা ডক্টৰ মানে কৰিব বিচাৰোঁ, তেন্তে তাত গৈ মেলি যদি আমি কিবা এটা শিকিব বিচাৰোঁ, কিন্তু বাট আমাৰ তাত কোনো এনেকুৱা ভাল ডক্টৰ নাই। বহুত চৰকাৰ আহিছে, কৈছে যে তোমালোকৰ গাঁৱত ভাল ডক্টৰ দিম, নাৰ্ছ দিম, বাট এতিয়ালৈকে একো এনেকুৱা দিয়া নাই আৰু একো হোৱাও নাই। কিন্তু আগতেও
আৰু আমাৰ যিবোৰ কণ্ডিশ্যন এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষতে ঘৰ দুৱাৰ হৈছে বিজেপি কৈছে ভাল ঘৰ দুৱাৰ দিম নামক দিম কিন্তু এতিয়া যিটো আমাৰ কণ্ডিশ্যন দিছে যে ঘৰ দুৱাৰো বহুত সৰু পঢ়িবৰ কাৰণে ৰুম ভাল নাই ওচৰতে ঘৰ দুৱাৰ আছে বাট মানে ইটো ঘৰ কিবা কথা পাতিলে ইটো ঘৰ মানে এনেকুৱা গধূলি টাইমত একো পঢ়িব নোৱাৰো যিটো টাইম ৰাতি যদি আমি এটা দুটালৈকে পঢ়োঁ সেইটো টাইমতে পঢ়া হয় আৰু মই যিহেতু এইবাৰ ছায়েন্সত লৈছোঁ আৰু মই ভালকৈ পঢ়ি মেলি ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু সেইবোৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে মানে মই মোৰ সপোনটো কিদৰে সফল কৰিব পাৰিম সেইটো আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ ट्रांसलेशन में कि डॉक्टर्स असम में कम है। हाँ नहीं ये बोल रहा है कि इसका ड्रीम है कि ये आगे वाले वक्त में पढ़ा लिख के वो डॉक्टर बने लेकिन इन लोगों के वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और इन लोगों के जो गांव रूरल एरिया का जो मतलब जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है ऐसा माहौल है कि इन लोगों के फाइनेंशियल पोजिशन की वजह से अभी कैसे वो उभर के बीजेपी जब आए थे उन लोगों ने बोला था कि घर देंगे कुछ देंगे लेकिन अब भी जो घर दे रहा है उसका माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ के मतलब एक रूम में कोई पढ़ रहा है तो साथ के जो मतलब घर का व्यवस्था अच्छा नहीं है तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में अभी जो फिलहाल जो डॉक्टर का और नर्सिंग का ये बोल रहे हैं कि नर्सिंग या डॉक्टर इन फ्यूचर में वो बनना चाहते हैं तो इस सिचुएशन जो उभर के इस सरकार के वजह से कैसे वो आगे जाके बनेंगे कैन यू गिव मी द पेपर विद द 5 promises? अच्छा ये डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? তুমি ডক্টর কিয় বনিব বিচাৰিছা যিহেতু এতিয়া যিবোৰ ডক্টৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ যিবোৰ চাহ শ্ৰমিকক দেখা গ'লে বহুত মানুহে গৈ মেলি মেডিকেলত যায় বাট কিন্তু যিবোৰ ডক্টৰ হৈছে সেইবোৰ কিন্তু মানে যিবোৰ আমাৰ টি গাৰ্ডেনৰ মানুহে ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে যিহেতু সেইবোৰ কাৰণে মই মানে আমাৰ যিবোৰ মানুহ আছে মই ভালকে মানে ডক্টৰ বনি তাহাঁতক ভালকে চাব পাৰোঁ আৰু ভালদৰে তাহাঁতক যাতে উন্নত শিক্ষা দিব পাৰোঁ মই যিটো হ'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো যাতে বেলেগকো কৈ মেলি মানে যিটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টে বহুতো সেইবোৰ কাৰণে মানে কৰিব পৰা নাই পইচা নথকাৰ বাবে কিন্তু বেলেগে ভালকে নপঢ়াৰ তথাপিও পইচা দি মেলি তাহাঁতৰ ডক্টৰ চিট লৈ লয় কিছুমান কিন্তু আমাৰ ষ্টুডেণ্টে যিমান কষ্ট কৰিলে সেইবোৰ নাপায় তো সেইটো কাৰণে যিহেতু মই ये बोल रहे हैं कि टी गार्डन के जो लोग हैं उन लोगों को डॉक्टर लोग अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे तो ये दिखाना चाहते हैं ये इन लोगों के लिए एक आइडियल मतलब सेट करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में टी गार्डन से लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बनने के लिए जो वो उन लोगों के लिए मतलब एक मोटिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में ऐसा हो रहा है कि ये बोल रहे हैं ये लोग पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन सकते लेकिन कोई लोग पैसे देके अभी डॉक्टर बन रहे हैं तो इस सिचुएशन को वो दिखाना चाहते हैं इन लोगों के लिए टी गार्डन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं इन लोगों के लिए वो एक मतलब अपने आप को एक स्टूडेंट हिसाब से वो सेटअप करना चाहते हैं अच्छा यहाँ पे डॉक्टर कौन कौन बनना चाहते हैं हाथ उठा के दिखाओ असमीज में बोलोगे हेलो भैया असमीज में बोलो ইয়াত কোনে কোনে ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছে সকলোৱে হাত দাঙা कोई नहीं अच्छा इंजीनियर कौन बनना चाहता है ইঞ্জিনিয়াৰ কোন কোন হ'ব বিচাৰিছে হাত দাঙা अच्छा क्या करना चाहते हो आप लोग তোমালোকে কি কৰিব বিচাৰিছে Sir, yeah, sir. बताओ Sir, my name is Sri Jidul Ghosh. I am from Dhemaji College. Sir, मुझे ये पूछना है कि आप सोचते हैं क्या स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स is essential to protect the democratic value in our country. Just because, sir, अब अमेरिका में जो समीक्षा आया था वहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोगों की जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है बीजेपी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रूल आउट किया है और इसलिए हम लोग का डेमोक्रेसी 64% ऐसे बताया गया है इसलिए आपको मैं पूछना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं कि अब भारत की इंडिया की जो इलेक्शन या पॉलिटिक्स में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना कितना जरूरी है डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना आपको क्या लगता है मुझे लगता है कि सर इट्स टाइम टू टेक स्टूडेंट और यूथ पावर टू टेक द पॉलिटिकल पावर एंड रूल आउट द इंडिया एंड इंडिया द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री always India have to the independent to live our life, live student life and live और एक बात बताना है सर कि जो अब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अगेंस्ट जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट हम लोगों का इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट सरकार बात कर रहा है कि वो ऐसा है ऐसे बात कर रहा है लेकिन यही से हम
हम लोगों का स्टूडेंट के मन में ये है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग कैसे हम लोगों का आवाज उठाएंगे, ये हम लोग का स्टूडेंट के मन में डर भेजा दिया है। क्योंकि का आंदोलन में जो का प्रोटेस्ट हुआ था, एंटी का प्रोटेस्ट में हम लोगों का पास हम लोगों का साथी को मार दिया गया है। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अब जो हालत हो रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी में, इसलिए स्टूडेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है। इंडिया को पॉलिटिकल पावर और इंडिया की जो पूरा यूथ पावर और इंडिया की फ्यूचर जो प्लानिंग होने वाला है, हम लोगों का अभी तो जो इकोनॉमिकल क्रैश हो गया है, इकोनॉमिक तो हम लोग का जीडीपी इकोनॉमिक कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, और भी फार्मर्स रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहा है साल भर ऐसे होगा तो साल भर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है हम लोग के पास, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट ही भरा है। वहाँ पे सारा हम लोग स्टूडेंट किसके लिए पढ़ेगा? आपका भी मोमेंट में स्टूडेंट नौकरी ढूंढेगा या खुद इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेगा। और हम भारत एक ऐसा देश है सर जहाँ पे सारे स्टूडेंट अपनी हक से जीना जाता है सर, हक से। मेरा जो इंडिपेंडेंट है, मेरा जो वॉइस है वो राइज करना चाहता है स्टूडेंट। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इट्स टाइम टू इंडिया जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में यूथ रूल आउट करे और यूथ लोग इंडिया को एक डेवलपमेंट कंट्री की तरह ले चले और इंडिया को इकोनॉमी जो क्रैश हो रहा है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे अब मैं आया हूँ यहाँ आपसे बात करने, और मैंने आपसे कहा कि मुझसे सवाल पूछो, आपने सवाल पूछा, और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। क्या आपने अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर, वो क्यों नहीं करते? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहाँ खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। क्यों? मैं यहाँ आया हूं, टीवी कैमरा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी का मतलब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दो। शायद अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं कहूंगा देखो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है, आपने पूछा जवाब नहीं दे पाया, सोच के अगली बार आपको जवाब दे दूंगा। तो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। कभी आपने प्रधानमंत्री को ऐसी मीटिंग में देखा है? क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, देश के भविष्य हो। अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई कमी तो होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आपका जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि हिंदुस्तान में आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी कम हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उधर फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, उधर सीएए चल रहा है। सबसे पहला सवाल है ये इंडिया है क्या? अगर हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, अगर हम इसका जवाब नहीं दे सकते तो हम बात समझ ही नहीं सकते। इंडिया है क्या? इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं। आपकी यहां भाषा है कि कौन सी भाषा में बोलते हो आप लोग? आसामी। आसामी भाषा है। तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है। यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। इन भाषाओं, धर्मों, लोगों के बीच में जो खुली बातचीत होती है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। मेरा कहना है, अगर हमने आसाम के लोगों से कह दिया देखो तुम जब दिल्ली जाओगे तुम अपनी भाषा में नहीं बोल पाओगे, तुम दिल्ली जाओगे तो तुम अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को भूलकर दिल्ली जाओगे। जिस दिन हमने ये कह दिया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया। सही बात है। अब हो क्या रहा है? एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई है
वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। अजीब सी बात है, देखिए मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। यहां पे आपका एयरपोर्ट हैगा? नाम क्या है उसका? हाँ? अरे सोचो, मोहनबाड़ी, ठीक है। आपका मेन एयरपोर्ट क्या का नाम क्या है असम में? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट है ना। ये नाम जो है ये असम का नाम है। हिंदुस्तान की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए दिए। इसके बारे में आप जानते हो? 2000 करोड़ रुपए असम को दिल्ली की सरकार ने दिए, और फिर वही एयरपोर्ट दिल्ली की सरकार ने अदानी जी को पकड़ा दिया। अब आप मुझे लॉजिक बताइए, अगर आप अदानी जी को एयरपोर्ट पकड़ाना चाहते थे तो आपने 2000 करोड़ रुपए आसाम की जेब में से क्यों निकाले? आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा, देखिए हम आपको एयरपोर्ट देना चाह रहे हैं मगर 2000 करोड़ रुपए आपको नहीं मिलेंगे, 2000 करोड़ रुपए हम असम की जनता को देंगे। तो पहले कहते हैं आपको कि हम 2000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसके बाद में एयरपोर्ट पकड़ा देते हैं अदानी जी को। टी गार्डन्स देखिए, टी गार्डन्स में भी वही हो रहा है, जो एयरपोर्ट में हो रहा है वो टी गार्डन्स में हो रहा है। जब हमारी सरकार थी हमने नॉर्थ ईस्ट को, असम को प्रोटेक्शन दिया था, स्पेशल पैकेज हजारों करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें कोई भी अगर असम में बाकी नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था उसको हम सब्सिडीज देते थे, उसको कैंसिल कर दी। अब आप मुझे बताइए, तमिलनाडु के पास समुद्र है ना? है। तमिलनाडु अगर अपना माल अमेरिका भेजना चाहता है तो एकदम भेज सकता है। आप क्या कर सकते हो? अगर असम का प्रोडक्ट आप अमेरिका भेजना चाहते हो, आप इतनी आसानी से भेज सकते हो? DB News।